ہاں جی، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ٹو آل مائی سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور کام بھی کر رہے ہوں گے۔ رضوان ہاشمی آپ کے سامنے ہے جی آج کا ایک بڑا اہم ٹاپک لے کر، ٹھیک ہے؟ اسمارٹ سلیبس کے مطابق میں نے آپ کو کہا تھا کہ بک 2 کے جو سیکنڈ پورشن ہے اس میں ہمارے 5 ہیروز ہیں، لیکن اسمارٹ سلیبس میں وہ ہو جائیں گے 3 ہیروز۔ اب تک میں نے آپ کو پڑھائے ہیں 3 ہیروز، ٹھیک ہے جی، لیکن ایک ہیرو اور رہتا ہے جو میں نے آپ کو کروانا تھا اور وہ لاسٹ ہیرو ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چوائس آئے، الیگزینڈر فلیمنگ اور لوئس پاسچر کے بیچ میں بھی فائنل نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کو لوئس پاسچر آج فائنل کروا رہا ہوں، یعنی کہ ہمارے ہیروز آج ہو جائیں گے اینڈ، ٹھیک ہے جی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ گرامیٹیکل پورشن کے ساتھ آپ کو ملوں گا، لیکن بات کریں گے ہم آج کے ٹاپک کی جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اور نالج کے حساب سے۔ تو بچوں اللہ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر انگلش کا آن لائن لیکچر نمبر 13 بن رہا ہے بچوں، ٹھیک ہے؟ آن لائن لیکچر نمبر 13 اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا ہیرو ہے اس کا نام ہے لوئس پاسچر۔ اب لوئس پاسچر کو ہیرو کیوں کہا جا رہا ہے جی؟ یہ بھی وردی ہے جی، یہ بھی کوالٹی رکھتا ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی ایبلٹیز ہیں کہ ہم اس کو ہیرو کہیں، کیونکہ اس نے بھی ہسٹری کے اندر کچھ ایسے کام کیے ہیں جو یہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو بھی ہم ہیرو کنسیڈر کریں۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے آج اپنے ٹاپکس کے مطابق اور اس کے شارٹ کوسچن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ بیٹے پہلا جو ٹاپک ہم ڈیفائن کریں گے وہ ہے ارلی لائف آف پاسچر، پاسچر کی ابتدائی زندگی۔ پاسچر کون ہے جی؟ کہاں پیدا ہوا؟ کب پیدا ہوا؟ زندگی کے اندر اس کے کیا کارنامے ہیں؟ اس کی فیملی کیسی تھی؟ اس کے اندر کیا کوالٹیز تھیں؟ کیا خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اس کو ہیرو بنایا گیا؟ بچوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے برتھ کی، پاسچر کی برتھ پر بات کریں گے۔ 1822 میں یہ پیدا ہوا ہے یہ بندہ، 1822 میں فرانس کے اندر یہ بندہ پیدا ہوا۔ کہاں جی؟ فرانس کے اندر۔ یہ فرینچ بندہ تھا، فرانس کے اندر پیدا ہوا۔ وہاں ایک ایریا تھا جس کا نام تھا جیورا ڈسٹرکٹ، جیورا ڈسٹرکٹ فرانس میں 1822 میں یہ بندہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد بچوں ہم بات کریں گے اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، ٹھیک ہے جی؟ فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم اس کے بات کریں گے۔ اس کے جو فادر تھے وہ نیپولین آرمی کا حصہ تھے، ٹھیک ہے جی؟ آرمی سے اس کے والد کا تعلق تھا۔ اور اگر ان کی فیملی کی میں 2 کوالٹیز آپ کے سامنے رکھوں تو ان کی فیملی کی 2 کوالٹیز ہیں جی۔ ان میں پہلی کوالٹی ہے جی پیٹریوٹزم، یعنی کہ حب الوطنی، اپنے وطن سے محبت۔ ان کی رگوں میں، ان کے خون میں وطن سے محبت شامل ہے۔ اس کے بعد ان کے خاندان کی کوالٹی آتی ہے بریوری، یہ لوگ بہادر بہت تھے، کہ خاندان میں بہت سے لوگ بہادری کے لیے بھی مشہور تھے اور حب الوطنی تو ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری تھی۔ اس کی حب الوطنی کی میں آپ کو کچھ ایگزامپل بھی دوں گا، لیکن سر اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو بچپن میں پاسچر کو پڑھنے کا بالکل بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ یہ سارا دن مچھلیاں پکڑتا، اپنے دوستوں کے اسکیچ بناتا، پینٹنگ کرتا رہتا اور اپنا سارا ٹائم ضائع کرتا۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے یہ میچور ہوتا گیا، اس کو اندازہ ہوتا گیا کہ میری پڑھائی میرے والدین پر ایک بڑا بوجھ ہے، تو پھر جناب یہ اپنی اسٹڈیز میں بڑا سیریس ہوا اور اس نے آرٹس اور سائنس دونوں میں گریجویشن کی۔ اور جو اس کا فیوریٹ سبجیکٹ تھا وہ کیمسٹری تھا۔ یہ ایک کیمسٹ تھا، ایکچولی یہ ایک کیمسٹ تھا، ٹھیک ہے جی؟ کیمسٹری میں اس کو اتنی کمانڈ تھی کہ یہ اکثر اپنے ٹیچرز کو بھی شرمندہ کر دیتا۔ کیسے؟ ان سے کچھ ایسا سوال پوچھ لیتا جو کہ ٹیچرز کو بھی جواب اس وقت نہیں آ رہا ہوتا تھا، اور وہ پاسچر سے جان چھڑوانے کے لیے کہتے کہ بیٹے آپ بیٹھ جائیں، سوال پوچھنے کا حق ٹیچر کو ہے، بچے کو نہیں ہے۔ یعنی کہ کیمسٹری میں اس نے اتنا ورک کیا کہ وہ اپنے ٹیچر سے بھی آگے نکل گیا۔ بیٹے ایک 36 کا آنکڑا ہے، ایک روایتی دشمنی ہے کہ دنیا میں 2-3 ملکوں کی، جس میں نمبر 1 پہ آتا ہے انڈیا اور پاکستان کی دشمنی، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بھی تنازعات چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری قوم، 2 قومیں ایسی ہیں جن میں کبھی بھی آپس میں گٹھ جوڑ نہیں ہو سکتی، وہ ہے جرمنی اور فرانس۔ جرمنی اور فرانس میں کیونکہ کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں تھی، اسی لیے پاسچر کو ہائر ایجوکیشن کے لیے جرمنی جانا پڑا اور بون یونیورسٹی میں جا کر اس نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور اتنا اچھا پرفارم کیا کہ اسے جرمنی والوں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر ایز اے ٹیچر بھی رکھ دیا، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم بات کریں گے اس کی حب الوطنی کی جو
जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा जो बोर्ड में अक्सर सवाल आ जाता है कि जी राइट अ नोट या डिफाइन सम एग्जांपल्स ऑफ पैट्रियटिज्म ऑफ पास्टर। बेटे 2 एग्जांपल हमारे सामने आएंगी। एक दफा क्या हुआ जी, रिटर्न द डिग्री, क्योंकि हमने कहा है कि जर्मनी ने उसको डिप्लोमा भी दिया जी और उसको जॉब भी दे दी थी। एक दफा पास्टर जर्मनी से फ्रांस वापस आ रहा था, रास्ते में उसको पता चला कि जर्मनी वाले फ्रांस पर अटैक करने वाले हैं, तो बजाय घर जाने के वो वापस जर्मनी गया और उसने प्रिंसिपल के टेबल पर अपना रेजिग्नेशन भी रखा, अपनी डिग्री भी उसके सामने रखी और उसे क्या कहा, उसने कहा जी ना मुझे ऐसे मुल्क की डिग्री चाहिए और ना ही मुझे ऐसे मुल्क का डिप्लोमा चाहिए, जॉब चाहिए जो मेरे वतन के खिलाफ जंग करने को तैयार है। इसलिए उसने ऑन द स्पॉट फौरन उसी वक्त अपना रेजिग्नेशन भी दिया और अपनी डिग्री भी उनको वापस कर दी। बेटे दूसरी एग्जांपल ये है कि एक दफा वो जर्मनी से फ्रांस वापस आ रहा था, तो फौजियों का एक कब्रिस्तान था जिसके बाहर चंदे की अपील की जा रही थी। तो पास्टर ने अपनी जेब में हाथ डाला और जितने पैसे निकले वो निकाल कर उस कुर्बान गाह के ऊपर रख दिए और वो पैसे बनते थे 150 फ्रैंक्स। फ्रांस के अंदर जो रकम चलती है उनको फ्रैंक्स कहते हैं। जैसे हर मुल्क की अपनी करेंसी है, हमारी तरफ रुपया चलता है और बांग्लादेश में टका चलता है, अमेरिका के अंदर डॉलर्स चलते हैं जी, इंग्लैंड में पाउंड्स चलते हैं, कहीं शिलिंग्स चलते हैं, कहीं रियाल चलते हैं, कहीं जनाब और भी इनकम के आमदनियों के करेंसी के नाम है। तो इसी तरह फ्रांस की जो करेंसी है उसको फ्रैंक्स कहते हैं। ये 2 एग्जांपल्स आ गए हमारे सामने उसकी ऊपर वतनी की। बेटे हमने पहला टॉपिक डिफाइन किया था अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ में हमने उसकी बर्थ को देखा, बर्थ प्लेस को देखा, फैमिली बैकग्राउंड को देखा, फैमिली के अंदर 2 उसकी खूबियां उनको देखा, उसकी एजुकेशन को डिस्कस किया, फ्रांस से जर्मनी जाने का वाकया देखा और जर्मनी को रिटर्न कर दी उसने अपनी डिग्री भी और अपने पैसे भी कुर्बान कर दिए अपने मुल्क के फौजियों के लिए, यानी कि उसके अंदर हुब्बुल वतनी भी कूट कूट कर भरी हुई थी। और तीसरी एग्जांपल उसकी ये है कि उसको फालिज हुआ था लेकिन फिर भी वो अपने आप को आर्मी में भर्ती करवाने के लिए एक दफा पहुंच गया था जनाब, लेकिन आर्मी वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि पैरालाइज बंदे को हम आर्मी में नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने इजादी तौर पर पास्टर को एक आर्मी के अंदर सीट दे रखी थी। तो ये 3 एग्जांपल है जनाब उसकी पैट्रियटिज्म की। बेटे अगला जो टॉपिक आ रहा है बड़ा अहम है, वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस का वर्ड कहते हैं जिसको हम कहते हैं ये ऑटोमेटिक, खुद ब खुद। कुछ साइंसदान बैक्टीरियोलॉजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने थ्योरी पेश की कि जी कुछ जानदार बगैर वालिदैन के पैदा खुद ब खुद हो सकते हैं। ठीक है जी, जैसे उन्होंने कहा बैक्टीरिया या और जर्म जो है ये खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। लेकिन पास्टर ने जनाब इस थ्योरी को प्रूव किया। कैसे? रॉन्ग। पास्टर ने कहा कि ये नजरिया बिल्कुल गलत है, बाकायदा तौर पर एक चैलेंज किया पास्टर ने उनको, और पास्टर ने ये साबित कर दिया कि अगर हम किसी लिक्विड को, पानी को फॉर एग्जांपल अच्छी तरह बॉईल कर लें, अच्छी तरह बॉईल कर लें और उसके अंदर से सारे जर्म्स को खत्म कर दें, फिर अच्छी तरह उसको ढांप लें, उसके अंदर हवा भी ना आने दें, तो मजीद उसके अंदर जर्म्स खुद ब खुद पैदा नहीं होंगे। तो इसी तरह स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है कि ये एक दावा था कि चीजें खुद ब खुद पैदा हो सकती हैं, लेकिन पास्टर ने उसको गलत साबित किया कि चीजें खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकती। अगला टॉपिक बेटे आएगा सिल्कवॉर्म इंडस्ट्री इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर रेशम के कीड़े की जो इंडस्ट्री है उसकी कितनी अहमियत थी, क्या मसला दरपेश आया, पास्टर ने मुल्क की मदद कैसे की। बेटे फ्रांस के अंदर जो सिल्कवॉर्म इंडस्ट्री है वो बड़ी फेमस है। पूरी दुनिया में जो सबसे महंगा तरीन सिल्क मिलता है ना जी, रेशम, वो फ्रांस का होता है। ठीक है, तो जैसे हमारी तरफ पोल्ट्री फार्म बनते हैं, कैटल फार्म बनते हैं, वहां बाकायदा तौर पर घरों में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, फिर लोग उनसे रेशम बनाते हैं और मार्केट के अंदर सेल करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन रेशम के कीड़ों में कोई बीमारी आ गई जिसकी वजह से फ्रांस की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का 50% हिस्सा उसी रेशम पर रिलाई करता था। बड़ा मसला दरपेश आ गया जनाब। हुकूमत ने पास्टर को खत लिखा कि जी आप इस मामले में हमारी मदद करें। पहले तो पास्टर ने इस चीज से इनकार कर दिया। उसने कहा जनाब आई एम अ केमिस्ट नॉट अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट। उसने कहा जी मैं केमिस्ट हूं, मैं कोई मारे जरासीम तो नहीं हूं, मैंने तो कभी रेशम का कीड़ा देखा भी नहीं है, तो मैं उसका इलाज कैसे कर सकता हूं। लेकिन हुकूमत के पास पास्टर की एक दुखती रख थी, और पास्टर की दुखती रख क्या है जी, उसके मुल्क के साथ मोहब्बत। हुकूमत ने कहा ठीक है जी पास्टर साहब आगे आपकी मर्जी है, लेकिन ये मामला है हमारे मुल्क की इज्जत का। पास्टर ने कहा ठीक है जी, अगर मुल्क की इज्जत का मामला है तो फिर मैं कुछ ना कुछ देखता हूं। पास्टर जनाब वहां पहुंचा और वहां पॉपुलैरिटी इतनी थी सिल्कवॉर्म इंडस्ट्री की कि जब दो लोग आपस में मिलते ना तो वो ये नहीं पूछते थे कि हाँ जी सुनाएं आपके बीवी बच्चे ठीक है, घर बार ठीक है, कारोबार ठीक है। सबसे पहले जो ग्रेडिंग थी ना जी आम दुआ सलाम, वो पूछते हाँ जी ठीक है, और उसके बाद वो पूछते ये बताएं कि आपके रेशम के कीड़ों की तबीयत अब कैसी है, आपका कारोबार कैसा जा रहा है। यानी कि उनकी जिंदगी का दारोमदार ही रेशम के कीड़े के कारोबार पर था।
पास्टर जब वहां पहुंचा तो पास्टर ने बगौर मुताला करने के बाद बताया कि प्रॉब्लम रेशम के कीड़ों में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम आपकी एनवायरनमेंट में है। उससे कहा अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, हीट का इंतजाम ठीक करें, लाइट का इंतजाम ठीक करें, इनके इर्द गिर्द गैदरिंग ना होने दें, इनकी खुराक फ्रेश रखें। जब लोगों ने इस पर अमल किया तो सिल्क वर्म इंडस्ट्री एक दफा फिर फ्लोरिश कर गई और फ्रांस दुनिया में फिर एक दफा इलस्ट्रेरियस हो गया, मशहूर हो गया, फेमस हो गया और उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। ठीक है बेटे, अगला पॉइंट देखेंगे जी कि पास्टर ने और क्या क्या किया जी। पास्टर ने जनाब कैटल डिजीज एंथ्राक्स का इलाज निकाला, जिसको उर्दू में कहते हैं गल घोटू की बीमारी। ये मवेशियों के अंदर बीमारी आ जाती थी, जिसकी वजह से उनकी ये जो वोकल कॉर्ड्स होते थे या जो गले की रतूबात होती थी वो सोजिश का शिकार हो जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें सांस की दिक्कत की वजह से काफी जानवर मर जाते और उनका कोई इलाज नहीं था। तो पास्टर ने इसका इलाज ढूंढा। पास्टर ने क्या किया, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कि जब भी जम्स हमारे अंदर अटैक करते हैं ना तो व्हाइट ब्लड सेल्स अगर ताकतवर हों तो वो जम्स को शिकस्त दे देते हैं। पास्टर ने क्या किया, पास्टर ने सेहतमंद जानवरों से व्हाइट ब्लड सेल्स लिए और उनको बीमार जानवरों के अंदर इंजेक्ट किया। ठीक है जी, जिसकी वजह से उनके अंदर के व्हाइट ब्लड सेल मजबूत हो गए। फिर उन्होंने अटैक किया जम्स के ऊपर, जिसकी वजह से लाखों मवेशियों की जान बच गई और मुल्क के अंदर जो बड़ा बहरान आ रहा था मीट से या मिल्क से रिलेटेड, उससे भी मुल्क को पास्टर ने बचाया। इसी तरह उसने फाउल कॉलरा का इलाज किया, परिंदों के अंदर हैजे की बीमारी थी, वो भी उसने इसी तरह किया कि उसने जनाब ताकतवर व्हाइट ब्लड सेल्स इंजेक्ट कर दिए उन मरीजों के अंदर, उन बीमार परिंदों के अंदर जिनके व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर थे। बेटे लास्ट टॉपिक हम करेंगे इससे रिलेटेड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का इलाज किया जी बच्चों। हाइड्रोफोबिया किसको कहते हैं? हाइड्रोफोबिया को कहते हैं जी अरबी फारसी में सदगुजीदगी। सदगुजीदगी किसको कहते हैं भाई? सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है बेटे, सद कहते हैं कुत्ते को और गुजीदगी कहते हैं काटने को, यानी कि कुत्ते का काटना, हल्काओपन। अगर एक पागल कुत्ता किसी इंसान को काट लेते हैं तो उसके सारे सिम्टम्स और जर्म्स जो है उस बंदे के अंदर इंजेक्ट हो जाते थे, अंदर शामिल हो जाते थे और उस बंदे को भी वैसे ही दौरे पड़ना शुरू हो जाते थे। मुंह से झाग आती है जी, कपकपी लगती है, डर लगता है और वो लोगों के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। आपने सुना होगा कि आज भी अगर हम देखते हैं ना फिल्मों ड्रामों में इधर उधर कि फलां बंदे को कुत्ते ने काट लिया और उसके पेट के अंदर 14 इंजेक्शन लगेंगे। तो ये 14 इंजेक्शन जो अब लगते हैं ना जी, और टेटनस का इंजेक्शन लगता है, ये भी पास्टर ने ही इन्वेंट किए थे जी, इसी ने तैयार किए थे। सदगुजीदगी का इलाज किया जनाब इसने कैसे? एक रैबिट को पागल कुत्ते ने काटा और वो हल्काओपन का शिकार होकर मर गया। उसने उस रैबिट के दिमाग के अंदर से मगज को निकाला जिसके अंदर वो जम्स मौजूद थे, उसको उसने हवा के अंदर रखा, खुश्क किया, उसको पाउडर शेप में बनाया और उसको वैक्सीन में शामिल करके जब मरीजों के अंदर इंजेक्ट किया गया तो उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट निकला, क्योंकि वो जो जर्म्स थे वो हवा और धूप की वजह से कमजोर हो चुके थे और जब वो अंदर गए मरीजों के खून में शामिल हुए तो उसकी वजह से अंदर वाले जर्म्स भी कमजोर होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आज तक 2020 तक वो 14 इंजेक्शन भी लगते हैं और टेटनस का इंजेक्शन भी हमें लगता है। आपने देखा होगा कि जब भी हमें रोड पर कोई रगड़ या कोई इस तरह की चीज हो जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि जी कि टेटनस का टीका लगवाया जाए। ये भी पास्टर ने इजाद किया था जी। तो ये थी पास्टर की जिंदगी और उसकी जो तिबी खिदमत थी इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, वो आपसे डिस्कस कर दी। उसकी पर्सनल लाइफ भी बता दी, उसकी सोशल लाइफ भी आपको बता दी गई। बच्चों यहाँ आज हमारे हीरोज का पोर्शन एंड होता है। मिस्टर चिप्स मैंने आपको एंड करवा दिया, हीरोज का पोर्शन भी एंड करवा दिया, बुक 2 के सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए। अब हमारी बारी आएगी करेक्शन की और प्रेपोजिशंस की। टेंसेस भी मैं आपको क्लासेस के अंदर करवा चुका हूँ, वो टेस्ट के अंदर भी हम दे रहे हैं। अब हम अगला पोर्शन स्टार्ट करेंगे अपना ऐसे और साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी करेक्शन या प्रेपोजिशन। बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे लेक्चर्स ले रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, पेपर भी कर रहे होंगे, पेपर सबमिट भी करवा रहे होंगे। फर्दर अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। और तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।